ایک شخص دبئی میں رہتا ہے اور اس کا ایک بھائی پاکستان میں رہتا ہے۔ بھائی اس کو کہتا ہے کہ گھر کے اخراجات کے لیے آپ پیسے دے دیا۔ وہ بھائی کو گھر کے اخراجات کے لیے پیسے بھیج دیتا ہے۔ وہ جس کو اخراجات کے لیے پیسے بھیجتا ہے وہ کچھ پیسے اس میں سے سیو کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے۔ سال دو سال کے بعد جب کافی پیسے جمع ہو گئے تو اس نے اس کا ایک مکان خرید لیا۔ اب دبئی والا بھائی آ کے کہتا ہے یہ مکان میرا ہے کیونکہ میرے پیسے لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ بے نامی ٹرانزیکشن ہوگا؟ یہ بے نامی ٹرانزیکشن نہیں ہوگا۔ ایک شخص دبئی سے اپنے بھائی کو پیسے بھیجتا ہے کہ آپ میرے لیے پاکستان میں ایک مکان خریدتے ہیں۔ وہ اس کو پیسے دے دیتا ہے کہ لے جی پیسے، آپ جائیں پاکستان۔ اب وہ بھائی کیا کرتا ہے، ان پیسوں کا مکان دبئی والے بھائی کی بجائے اپنے نام پہ خرید لیتا ہے۔ کیا یہ بے نامی ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ بے نامی نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ بھائی کہتا ہے یہ پیسے آپ اپنے پاس رکھیں، میں جب آؤں گا تو میں اس سے ایک مکان خریدوں گا۔ وہ بھائی کو پیسے کھا لیتا ہے۔ اب وہ جب وہ پیسے کھا لیتا ہے تو بھائی کہتا ہے مجھے پیسے دو۔ وہ کہتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کہتا پھر آپ اپنا مکان دو۔ کیا وہ اس کے مکان کو بے نامی کے طور پہ لے سکتا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں، اس کو جواب ہے۔ اب وہ بھائی پیسے لے کر خود آ جاتا ہے اور ایک مکان بک رہا ہے، اس کو کہتا ہے یہ مکان میں نے خریدنا ہے۔ اس مکان کا سودا کر لیتا ہے۔ سودا کرنے کے بعد پیسے دے دیتا ہے۔ پیسے دے کے جو تاریخ بنی ہوئی ہے اس تاریخ پہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ جو چھوٹا بھائی یہاں رہ گیا وہ کیا کرتا ہے، جب رجسٹری کا وقت ہے اپنے نام رجسٹری کروا لیتا ہے۔ کیا یہ بے نامی ہے؟ نہیں، یہ بے نامی نہیں۔ بے نامی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہو۔ There should be a tripartite agreement۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی جو مکان کی خرید کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے اس میں دو فریق نہیں ہونے چاہیے، تین فریق ہونے چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے۔ اگر ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ نہیں ہے تو یہ بے نامی نہیں ہے۔ ٹرائی پارٹائٹ میں یہ ہے کہ ایک اصل خریدار، دوسرا ظاہری خریدار اور تیسرا فروخت کرنے والا، تینوں کے درمیان اس ایگریمنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اے یہ کہتا ہے کہ یہ مکان میں نے خریدنا ہے، بی کہتا ہے کہ میں نے فروخت کرنا ہے۔ اے اور بی کے درمیان سودا طے پا جاتا ہے۔ اب اے یہ کہتا ہے کہ میں کیونکہ ملک سے باہر جا رہا ہوں، اس مکان کا انتظام و انصرام کرنا ہے، اس پر لون لینا ہے، اس کو لون لے کے بزنس کرنا ہے، لہذا یہ میرا مکان جو ہے اس میرے بھائی کے نام رجسٹری کرا دی ہے۔ اب جس کے نام رجسٹری کرایا جا رہا ہے وہ اصل اونر تو نہیں ہے،
वो असल ख़रीदार नहीं है। इसका मकसद ये हुआ कि असल ख़रीदार और ज़ाहिरी ख़रीदार और फ़रोख्त करने वाला और, ये तीन आदमी होंगे तो इससे फिर बेनामी ट्रांजैक्शन वजूद में आता है। कानून ये कहता है कि जो शख्स रिकॉर्ड पर मालिक ज़ाहिर हो रहा है वो ऑस्टेंसिबल ओनर है, और जो पसे पर्दा है, जो असल में खरीद रहा है, वो रियल ओनर है। अब रियल ओनर क्या करता है? रकम अदा करता है, रजिस्ट्री करवाता है, डॉक्यूमेंट अपने पास रखता है, पोजेशन खुद लेता है, और पोजेशन लेने के बाद वो प्रॉपर्टी की जब रजिस्ट्री का वक्त आता है तो अपने मोटिव के तहत वो प्रॉपर्टी उसके नाम करवा देता है। तो अब वो रियल ओनर जो है वो पसे पर्दा चला गया। अब रियल ओनर और ऑस्टेंसिबल ओनर के दरमियान अगर तनाज़ा पैदा हो जाए तो रियल ओनर को यह हक हासिल है कि वो अपनी ओनरशिप क्लेम करे और उस डॉक्यूमेंट को ये करार दिलवा दे कि ये बेनामीदार है, ये ट्रांजैक्शन फर्जी और नुमाइशी है और ये ट्रांजैक्शन बेनामी है। तो इस बेनामी ट्रांजैक्शन में ज़ाहिरी मालिक को सरेंडर करना पड़ता है असल मालिक के सामने। अब इस तरह की सूरत हाल अक्सर मुकदमात में पैदा होती है, तो कोर्ट्स ने इसके लिए एक प्रिंसिपल वज़ा कर दिया कि कब कोई शख्स बेनामीदार होगा और कब कोई शख्स रियल ओनर होगा। इस पर जो लेटेस्ट अथॉरिटी है ये मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। यह 2018 CLC 685 बेनामी ट्रांजैक्शन ingredients of benami transaction were motive, consideration, possession of property, possession of documents। ये तमाम बातें अगर होंगी तो बेनामी ट्रांजैक्शन होगा। अब हम इन तमाम बातों को अलग-अलग ज़ेर बहस लाते हैं। बेनामी ट्रांजैक्शन का मोटिव किसे कहते हैं? मोटिव क्या होता है? मोटिव एक ऐसी ज़हनी कैफियत का नाम है जो किसी शख्स को तहरीक देती है कोई काम करने के लिए। अब अगर कोई शख्स अपने नाम प्रॉपर्टी नहीं लगवा रहा, वो किसी दूसरे के नाम लगवा रहा, तो इसका मुहर्रिक क्या है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसका ऐसा करना उसके जहन में मौजूद है, उसका इरादा ये कह रहा है कि मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदनी खुद है लेकिन नाम अपने भाई के लगवा देनी है। इसके मुहर्रिकात क्या है? तो ये मुहर्रिक जो है ये बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुहर्रिक ना हो और वैसी नाम लगवा दे। अगर कोई शख्स मुहर्रिक के बगैर प्रॉपर्टी दूसरे के नाम लगवाता है तो उसे बेनामी नहीं कहा जा सकता। बेनामी के लिए मुहर्रिक का होना ज़रूरी है। मुहर्रिक वो तहरीक है जो इंसान के जहन में पैदा होती है और उसकी वजूहात जहन से बाहर भी हो सकती हैं, जहन के अंदर भी हो सकती हैं। बाहर बहुत सी वजूहात हैं, उसके अपने मुशाहदात हैं, उसके ख्यालात हैं, उसके एहसासात हैं, उसके जज्बात हैं जो उसे तहरीक देते हैं कि आपने ये काम करना है। लिहाजा जब वो बेनामी ट्रांजैक्शन क्लेम करेगा तो सबसे पहले ये बताएगा कि उसको इस दूसरे शख्स के नाम प्रॉपर्टी लगवाने का मुहर्रिक क्या था। अगर कोई तहरीक नहीं थी, उसने वैसे ही लगवा दी, तो फिर वो बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। दूसरा है इसमें कंसीडरेशन।
जब हम सेल की बात करते हैं कि मैंने ये प्रॉपर्टी खरीद की थी, तो फिर इसमें सेल की डेफिनेशन को देखना होगा। सेल इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर ए प्राइस पेड, promised, or partly paid and partly promised to be paid। इसका मकसद ये हुआ कि जो शख्स प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, प्रॉपर्टी को खरीदने वाला रकम अदा करेगा। सेल के लिए ज़रूरी है कि उसमें प्राइस को फिक्स किया जाए। फिक्सेशन ऑफ प्राइस इज ए साइन qua non फॉर द कंप्लीशन ऑफ सेल। और प्राइस को फिक्स कौन करता है? जिसने प्राइस अदा करनी है। तो जो शख्स प्राइस अदा करने वाला है, वो शख्स उस प्राइस को अदा करेगा। जब वो प्राइस अदा करेगा तो वो सबूत देगा कि ये रकम मेरी है। इसमें आमतौर पर पॉइंट ये रेज होता है कि व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम को मद्देनजर रखा जाता है। मिसाल के तौर पर एक औरत के नाम एक प्रॉपर्टी है। खामिद ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी मैंने बीवी के नाम परचेज की थी। वो मोटिव भी बता देता है कि इन वजूहात की बिना पर मैंने इसको अपनी बीवी के नाम लगवाया था। अब यहाँ क्वेश्चन ये पैदा होगा कि पेमेंट किसने की। अब इसका बर्डन किस पर है? प्रिजम्पशन ये है कि प्रॉपर्टी खामिद की है। लिहाजा औरत को ये साबित करने के लिए कि ये प्रॉपर्टी खामिद की नहीं है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, उसे अपना सोर्स प्रूव करना पड़ेगा। उसे ये बताना पड़ेगा कि ये रकम मैंने अदा की। ऐसे रिलेशंस में जैसे हस्बैंड और वाइफ है, बेटा और बाप हैं, इनमें जो आदमी सोर्सफुल है, समझा ही जाएगा कि ये पेमेंट उसने की है। तो कंसिडरेशन वाज पेड by the person who having the sources to pay it। और अगर वो सोर्सेज पे करने के प्रूफ बता देता है कि मेरी फलां जगह नौकरी है, फलां जगह से पैसे मैंने दे दिए, तो इसका बर्डन ज़्यादातर उस पर होगा जो ऑस्टेंसिबल ओनर है, कि वो ये बताए कि अगर पैसे इसके नहीं थे तो तेरे पैसे कहाँ से आए। तो अगर बीवी कोई काम नहीं करती, घरेलू खातून है, उसके माँ बाप भी इतने ताकतवर नहीं है, उसके पास जेवर भी कोई नहीं है, और फिर प्रॉपर्टी मियाँ बीवी के रिश्ते के दौरान खरीद ली गई है, तो इसका मतलब ये होगा कि बीवी ने प्रॉपर्टी खरीद नहीं की। ये प्रॉपर्टी खामिद ने खरीद की और खामिद ने खरीद करके उस बीवी के नाम लगवाई। लिहाजा पेमेंट वाज मेड बाय हस्बैंड। तो दूसरा इंग्रेडिएंट इसका ये है कि सोर्स ऑफ मनी बताना है कि किसने ये प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए पैसे दिए थे। एक बच्चा है 10 साल का, एक आदमी खरीदता है प्रॉपर्टी, बच्चे का नाम लगवा देता है, तो प्रिजम्पशन ये है कि पैसे बाप नहीं दिए। अब वो बच्चा ये बताएगा कि उसके पास पैसे कहाँ से आए। अगर वो अपने सोर्सेज बता देता है, उसको नाने ने दिए हैं, मामू ने दिए हैं, या उसकी माँ के पास जेवर था, उसने वो बेच के वो उसको प्रॉपर्टी दे, तो बर्डन उस पर होगा जो ऑस्टेंसिबल ओनर है। ऐसे फिड्यूशरी रिलेशनशिप जिसमें ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड सोर्स जो है वो आदमी के पास है, तो जो आदमी सोर्सफुल है, ये प्रिजम्पशन है कि पैसे उसी ने दिए। तो कंसिडरेशन को प्रूव करना जरूरी है। एक जगह प्रिजम्पशन आ जाती है सोर्सेज की, एक जगह प्रिजम्पशन नहीं आती। लेकिन प्रिजम्पशन जो है ये रिबटेबल है। प्रिजम्पशन कहाँ नहीं आएगी कि दो भाई हैं, उसकी भी ज़मीन है, उसकी भी ज़मीन है, उसकी भी जायदाद है, उसकी भी जायदाद है, उसके पास भी मुलाजमत है, उसकी भी मुलाजमत है, दोनों इक्वल फुटिंग पे खड़े। तो फिर ऐसी सूरत में ऑस्टेंसिबल ओनर ने प्राइस साबित नहीं करनी, बल्कि उस शख्स ने प्राइस साबित करनी है जो रियल ओनर अपने आप को क्लेम कर रहा है। इसमें कोई प्रिजम्पशन नहीं होगा। अब जहाँ प्रिजम्पशन आ जाए, मसलन एक बच्चा है और एक बाप है, एक बीवी है और एक खामिद है, इसमें प्रिजम्पशन आ गया कि खामिद ने पे किया। अब ये जो प्रिजम्पशन है ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है।
रिवर्टेबल प्रिजम्पशन का मकसद ये है कि लॉ ने एक शख्स के हक में प्रिज्यूम तो कर दिया, अब अगर दूसरा शख्स उसको मुस्तरद करा देता है एविडेंस के जरिए, किसी डॉक्यूमेंट के जरिए, किसी टेस्टिमनी के जरिए, सर्कमस्टांसिस के जरिए, प्रोबेबिलिटीज के जरिए, अगर वो उस प्रिजम्पशन को रिबट कर देता है तो दैट इज रिबटेबल प्रिजम्पशन। फिर साबित ही होगा कि सोर्सेज उसने दिए हैं जिसने प्रिजम्पशन को रिबट कर दिया है। तो जो शख्स प्रिजम्पशन को रिबट कर रहा है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब फर्ज करें वो प्रिजम्पशन को रिबट नहीं कर पा रहा, प्रिजम्पशन है रियल ओनर के हक में, ऑस्टेंसिबल ओनर रिबटल कर नहीं पा रहा प्रिजम्पशन की, तो लॉ ये कहता है कि अगर प्रिजम्पशन रिबट ना हो तो इट इज अ प्रूफ, प्रिजम्पशन इज कन्वर्टेड इनटू कंक्लूसिव प्रूफ एंड इट इज नॉट रिबटेड। क्योंकि प्रिजम्पशन पे फैसले नहीं होते, फैसले प्रूफ पे होते हैं। अगर इनिशियली प्रिजम्पशन कायम हो गया तो प्रिजम्पशन कायम करके फैसला नहीं दे देना, बल्कि प्रिजम्पशन के बाद दूसरे फरीक को कहना जी आप इसको रिबट करें। अगर वो रिबट करने में कामयाब ना हुआ तो फिर ये प्रिजम्पशन नहीं रहा, देन इट इज ए कंक्लूसिव प्रूफ। तो लॉ का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि देयर इज ए रिबटेबल प्रिजम्पशन और वो प्रिजम्पशन रिबट कर दी गई है तो फिर वो प्रिजम्पशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर उस प्रिजम्पशन को रिबट नहीं किया गया तो वो प्रिजम्पशन अब प्रूफ में कन्वर्ट हो जाएगी। लिहाजा अगर ये प्रिजम्पशन है कि पेमेंट खामिद ने की है और औरत इसको रिबट नहीं कर सकती तो प्रूफ ही है कि खामिद ने अदा किया है, क्योंकि नो सूट शुड बी डिसाइडेड ऑन प्रिजम्पशंस। जजमेंट प्रिजम्पशन पर नहीं होनी, जजमेंट प्रूफ पे होनी है। प्रिजम्पशन कब प्रूफ बनता है ये आपने उसको देखना होता है कि प्रिजम्पशन अगर रिबटेबल है तो रिबट नहीं हुई तो प्रूफ बन गया, रिबट हो गई तो प्रूफ नहीं रहा। इस तरह एक प्रिजम्पशन ऐसी है जो कंक्लूसिवली डिटरमिन्ड है, रिबटेबल नहीं है। तो अगर प्रिजम्पशन रिबटेबल ना हो तो वो प्रिजम्पशन बजाते खुद एक प्रूफ है। अब उस प्रूफ को दूसरे प्रूफ के मुकाबले लाकर देखना पड़ेगा कि वेट किसका ज्यादा है। उधर भी एक कंक्लूसिव प्रूफ मौजूद है, उधर भी कंक्लूसिव प्रूफ है, तो दोनों में से पावरफुल या फोर्सफुल या वेटफुल, वेटी कौन सा प्रिजम्पशन इस दोनों में है। लिहाजा पेमेंट ऑफ प्राइस का क्राइटेरिया ये है कि अगर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है तो हस्बैंड ने पे किया है या बाप ने पे किया है या बड़े भाई ने पे किया है, लेकिन प्रूफ जरूर करना है, सोर्स ऑफ कंसिडरेशन को साबित करना है। थ्रू रिवर्टेबल प्रिजम्पशन करें या अनरिबटेड प्रिजम्पशन के जरिए करें या अदरवाइज डायरेक्ट एविडेंस के जरिए करें, तो इसको साबित जरूर करना होता है। तीसरा है पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। पोजेशन इज 9/10 ऑफ ओनरशिप। अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है उसकी दो सूरतें हैं कि या तो वो पोजेशन लेगा इन परसुएंस ऑफ द एग्रीमेंट या वो पोजेशन लेगा अंडर सेल। सेल अगर ऐसी सेल है जिसके रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है बल्कि वो रूरल एरिया की सेल है तो उसमें प्रिजम्पशन के बगैर सेल होती है। देयर कैन बी नो सेल विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजेशन वेयर टीपी एक्ट इज इनएप्लीकेबल। जहाँ टीपी एक्ट का इतलाक नहीं होता तो वहाँ पर वो प्रॉपर्टी डिलीवरी ऑफ पोजेशन से साबित की जाती है। इसका मकसद ये हुआ कि जिसने पोजेशन हासिल किया उसने वो पोजेशन सेल के अंदर हासिल किया। तो अब हमारे पास हैं दो आदमी, एक रियल ओनर है, एक ऑस्टेंसिबल ओनर है। बेचने वाला एक है, पोजेशन बेचने वाले के पास है। अब बेचने वाला पोजेशन कौन से आदमी को दे रहा है? जिसको वो पोजेशन अंडर सेल दे रहा है वही परचेजर होगा। लिहाजा पोजेशन एट द टाइम ऑफ सेल साबित करनी है। ये नहीं है कि बाद में किसी ने ले लिया, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर सेल हुई है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुई है, तो अगर वो रजिस्टर्ड डीड के जरिए हुई है तो रजिस्टर्ड डीड के बाद पोजेशन किसके पास है, और अगर वो ओरल सेल के जरिए सेल हुई है तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन के वक्त किसने पोजेशन हासिल किया। तो पोजेशन इज ए गुड प्रिजम्पशन टू डिटरमिन कि कोई बेनामी ट्रांजैक्शन किसके हक में है।
अगर पोजेशन ए ने ले लिया, पेमेंट ए ने कर दी और अंडर सेल पोजेशन उसके पास आ गया, तो ये आप उसने इंग्रीडियंट को फुलफिल कर दिया। लेकिन अगर पोजेशन ऑस्टेंसिबल ओनर ने लिया है तो फिर ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं है। बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए मोटिव के साथ साथ, सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ डिलीवरी ऑफ पोजेशन अंडर सेल को भी साबित करना है। अगर वो अंडर सेल पोजेशन को साबित नहीं कर पाता तो फिर ये एक इंग्रीडियंट फेल हो जाता है, मिसिंग हो जाता है। और जब ये एक इंग्रीडियंट मिसिंग होगा तो इसका मकसद ये होगा कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं, कुछ और हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, अंडर पर्सन हो सकता है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकती है, इट मे बी एनीथिंग एल्स, लेकिन ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं होता। नेक्स्ट है इसमें डॉक्यूमेंट्स। असल डीड, अगर आप सेक्शन 54 का इतलाक कर रहे हैं और उसमें एक डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि सेक्शन 54 ये कहता है कि सेल इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर ए प्राइस पेड, promised or party paid and party promised to be paid. Sale is effected through a registered instrument. अगर अर्बन प्रॉपर्टी का, जहाँ सेक्शन 54 का इतलाक हो रहा है, वहाँ आपका इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है तो सेल नहीं है। अगर इंस्ट्रूमेंट मौजूद है तो अगला क्वेश्चन ये होगा कि इंस्ट्रूमेंट किसके पास है। अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल यानी सेल डीड, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एक के पास है तो सवाल ये होगा, बी ये कहता है जनाब ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने परचेज की है, मैं वो ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं हूँ, मैं रियल ओनर हूँ। ऑस्टेंसिबल ओनर ये है जिसके नाम पे ये लगी हुई है। तो क्वेश्चन ये होगा कि ऐसा डॉक्यूमेंट किसके पास है। अगर ऑस्टेंसिबल ओनर के पास डॉक्यूमेंट है, नाम भी उसका है,